جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی ہے، اور اس میں کوئی زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے، ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گرائے گا. آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا. تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انواع جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں. میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے. آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں تھی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کی معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے. آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے. 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے. آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں. کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے. اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں. کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں. ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے. 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس کو یہ چیزیں، یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں. ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے آج تک ان کے رجسٹریشن بند ہے، بند حکومت کی طرف سے ہے. پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے مدارس چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے آمدن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں، اور اس پر کوئی ایمرجنسی ان کے لیے نہیں ہے. ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے. جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں، اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کی پرائرٹی نہیں، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا. اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں، اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو بتائیے گا کہ یہ میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے پھر اس کو آپ میچ فکسنگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہونا نہیں چاہیے. ابھی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے جیسے آپ نے بات کی، اور دوسرا
हुकूमत ने फौरी तौर पे ये आज पता चला है कि फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाने की जो है वो इम्कान है और जल्द बुलाया जाएगा। अगर इन दिनों में अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मसौदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या कट होगा, किस तरह से आप जाएंगे, क्या आप उसका बायकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे? इस हवाले से कोई देखिए, अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। ये बताइए, कहा जा रहा है कि आप JUI के अलावा हुकूमत के पास जो नंबर के नहीं वो पूरी है, क्या आपसे आपके साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है, और अगर नंबर के पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकात होती है हमारे साथ? अभी हमें ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका हवाले से आप बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने फ़लस्तीन की बात की और उम्मत मुस्लिमा की बात की, तो ये रोल जो है वो सऊदी अरब अदा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपका क्या स्टांस है, सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? आपको मेरे ख्याल में सऊदी अरब को क़ियादत करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, उनका एक मकाम है, और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तुर्की, इनका एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़लस्तीन के मसले पर ये अपना कायदाना किरदार अदा करे और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाए। मौलाना साहब पहले तो आपको पहली बात ये कि आपकी जो मीडिया टीम है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं करता। आपके 4-5 जो छोटे बड़े तरजमान हैं उसकी जाने से कोई रिस्पांस नहीं आता। बाकी सियासी जमातें तावन करती है, लेकिन आपकी पार्टी की जो मीडिया टीम है वो बिल्कुल तावन नहीं। आप कैसे ताउन चाहते हैं? उनकी मर्जी के सवाल सीधे पूछते, वो कोई कॉल नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं देते, मैं सीधे जवाब सवाल ये आपसे सवाल है। अच्छा मौलाना साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमीर मुंतखब हुए हैं। मौलाना साहब, 90 की दहाई से लेकर अब तक आप ही अमीर चले आ रहे हैं, हालांकि आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या जमात उलमा इस्लाम में अब तक आपके मुकाबले में कोई और अमीर नहीं है? जमात से पूछें, मेरे से मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने कोई इस पार्लियामेंट को मुस्तरद कर दिया और आपने कहा कि इस पार्लियामेंट में कोई हक हासिल नहीं है कोई आईनी तरमीम करने का। दूसरी जानब ये भी खबरें हैं कि आप PTI के साथ मिलकर कोई तरमीम का मसवदा बना रहे हैं, तो ये मतलब है कोई इसमें क्या है कि आप अगर मैंने अपनी सोच आपको बता दी है, ये हमारी सोच है। बाकी हमारे राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारा राब्ता है और उनसे भी यही तय हुआ है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं। PTI से भी यही बात हुई है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं तमाम पार्टियों के दरमियान। जहाँ इत्तेफाक राय हो सकता है, हमें कोई इत्तेफाक राय से तो झगड़ा नहीं है। इत्तेफाक राय वाली तरमीम पार्लियामेंट पास कर सकती है। अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं। आप फरमा रहे हैं कि मंडियां नहीं लगनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मंडियां भी लगेगी, खरीदो फरोख्त भी होगी। ये क्या बेहतर नहीं होता कि जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा इसमें पार्टी बनती और फुल कोर्ट का मुतालबा करती, तो ये मामला किसी न किसी हद तक रुक सकता था? ये तो आप पहले मशवरा देते ना। आपने पूछा नहीं, आपने पहले पूछा नहीं। मौलाना साहब, आज के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग तकरीबन अलाउ हो चुकी है। बतौर सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अब लोगों की वफादारी? अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असेंबली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असेंबली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है। हम अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फिक्र रहें, बाकी जो है तो उन पर ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल लेते चले सर, आपके पहली दफा आपने जो इनकार किया, उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर करवा ली जाती है, तो आपने पेशावर में कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आईनी तरमीम का नहीं, मार्शल लॉ का मसवदा है। तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रुक करवा ली जाती है जोर जबरदस्ती, तो फिर आपकी क्या स्थिति है? ज़ाहिर है जी कि हम तो इख्तिलाफ राय करेंगे और इख्तिलाफ राय की नौयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारे नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है,
जब वो बनेगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे थे? सियासी रहनुमा तो आते हैं आपके पास, मौलाना साहब, जी ऐसी मुलाकातें भी है जो कैमरों के सामने नहीं होती, मतलब सियासी जमातों के अलावा भी आपके नॉन स्टेट एक्टिविटी कोई रास्ता नहीं होता। सर खिलाई मखलूक तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात? आप 24 घंटे बाहर होते हैं, कहाँ से आते हैं? आपके सामने गुजरा है 24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं। मौलाना साहब, आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? सुबह के आजाद तक तो आप खड़े होते हैं। मौलाना, आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद में बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर इसको रोकेंगे या क्या रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीजें जब हमारे शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है कुछ तफर्रात का इज़हार किया था, तो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का यानी जो आपके राब्ता मौजूद है, इसमें कुछ आपने वज़ीर आला के हवाले से कुछ तफर्रात का इज़हार किया? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का बड़े मामूली लफ्ज़ का है, वहाँ से हुकूमत नहीं है। ये बताएं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की मैंने बात कर ली उसके ऊपर, काफी आना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत कहती थी कि पहले आपको मनाने की कोशिश की, रहनुमा आते रहे, बाद में उनकी ही मोटिव ये था कि अब हमें मौलाना साहब की शायद जरूरत न पड़े। क्या हुकूमत कामयाब होगी आपके बताए? इस पर तो 2-3 सवाल आ गए हैं, मैंने बात कर ली है, बार बार दोहराने की क्या जरूरत। अच्छा मौलाना साहब, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बाहर बताया कि पीटीआई वाले, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत में, तो वो तो उनको डाकू और चोर कहते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते, तो मौलाना साहब अगर चाहें उनसे बात कर सकते हैं, सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पेशकश आपको हुई और उसमें आप ये किरदार अदा कर रहे हैं? हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफरतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अंसर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ तो पीटीआई और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो आपस में किसी बाहमी मुज़ाहमत का शिकार ना हो, और उसमें हम कामयाब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इख्तिलाफ होते हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तामीरी तनकीद जो है वो तो हुस्न है हमारी जमहूरियत का, हमारे पार्लियामेंट का, और ये रहेगा। और जिस तरह जितना हुजूम अमल का होगा उतना ही हुजूम रद्द अमल का होना चाहिए। मतलब सर, आपकी वजह से पिछली मरतबा उनका सब निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर गया। एतवार वाला दिन भी जो था कि आसमान गिर पड़ेगा, वो वाकई गिर पड़ा उन पे। क्या आपको लगता है कि अब फिर जो है ये कोशिश, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि फिर उसी तरह ये होने जा रहा है या नहीं? मतलब अभी तक तो हमें कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई मुसवदे में नया मुसवदा आता है, रोज़ कोई नया मुसवदा आता है, फिर एक नया मुसवदा आता है। तो इस तरीके से तो अभी तक वहाँ पर भी कोई एक यकजहती मौजूद नहीं है, न यकसुई मौजूद है कि हमें कोई एक बात कही जाए। जिस वक्त कोई एक बात पर पहुँचेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल पीटीआई में डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या उसकी हमारे आपकी दरख्वास्त मौके नहीं करते? तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई का और हमारा किसी तरह भी कोई मुश्तरका इज्तिमा का कोई फैसला आपस में नहीं हुआ है। वो अपने जलसे करेंगे, हम अपने जलसे करेंगे, लेकिन हमने एक अपील की है कि जब तक बाहर के मेहमान यहाँ मौजूद हों, हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कि मनफी पैगाम जाए उधर। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से 7 तारीख को मिलियन मार्च का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में गजा और फिलिस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से। अगर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आपसे इस हवाले से रब्ता करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले पीटीआई से भी मुलाकात की और आज बिलावल हाउस गए थे फील्ड में गजा मार्च के हवाले से, मिलियन मार्च के हवाले से, अगर जमात इस्लामी आपसे रब्ता करती है और आप मना कर रहे हैं कि इस पर जो सिंगाई तावन तंजीम है उसके मुंदीन भी इस्लामाबाद में मौजूद है, अभी मेरे साथ कोई रब्ता करते तो आपका क्या लाएगा? अभी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है, और जब तक कोई रब्ता नहीं होता तो मैं
तो जवाब नहीं दे सकता कोई। एक आदमी दो सवाल, तीन के सवाल कर रहा था, एक सवाल बकरियां उठाओ भाई पहुंचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे अवाम के सफ़ों से न जाए और मेहमानों का यहाँ पर जो मौजूदगी है उसमें कौम एक सफ़ पर नजर आए। हमें मालूम हुआ है कि PTM के जरगे के मुंतज़िमीन पर कोई तशद्दुद हुआ है, जो बड़ी काबिल मज़म्मत बात है। ये लोग उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके नज़रिए से इख्तलाफ किया जा सकता है, उस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन वो गैर मुसल्लह है और वो एक जरगा कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ सोच उभर रही है तो ऐसे इक़दाम तो उन्हें मज़ीद बरंगेख्ता करने की एक कोशिश है और उसको बरंगेख्ता करने का सबब बन सकते हैं। तो हुकूमत को भी ज़िम्मेदाराना रवैये अपनाने चाहिए और इस किस्म के इक़दाम से शायद पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें यकजहती की तरफ जाना चाहिए और हुब्बुल वतनी के लिए हमें माहौल बनाना चाहिए ताकि लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें और यहाँ पर जो लोग इस वक्त एहतजाज पर हैं उनको भी हमें मेन स्ट्रीम लाइन पे लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम मुत्तहद कर सकें और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना सकें।